pulse analog modulation further into two types. First one is pulse amplitude modulation. पहला जो टाइप है वो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रहेगा. दूसरा टाइप जो है हमने डिफाइन कर दिया, दैट इज पल्स टाइम मॉड्यूलेशन. और उसके अंदर ये दोनों मॉड्यूलेशंस आएंगी, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन एंड पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, बिकॉज इन दोनों के केस में कैरियर पल्स ट्रेन की टाइमिंग वेरी हो रही है अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. Now we come to first type of pulse analog modulation, that is pulse amplitude modulation. As I have told you that in pulse amplitude modulation, the amplitude of a constant width, constant position pulse is varied according to the amplitude of the samples of analog signal. The amplitude of a pulse coincides with the amplitude of the analog signal, that is the analog signal that we have to transmit. उसकी कोई भी shape हो सकती है, but carrier should be of pulse shape. Third one is the PAM waveforms resemble the original analog signal more than the waveforms of PWM and PPM. Now जो correspondence है between the modulating signal, that is the information bearing signal to be transmitted, and the modulated signal, that is pulse amplitude modulated signal, that correspondence between the two signals is more easily visible in case of pulse amplitude modulation. क्योंकि पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है उस वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की शेप को फॉलो करेगा. सो द कोरस्पोंडेंस बिटवीन टू कैन बी लोकेटेड इजीली. बट क्योंकि पल्स टाइम और पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के केस में टाइमिंग चेंज हो रहे हैं according to the modulating signal, so they are not that clearly visible as in case of pulse amplitude modulation. Now this is the diagram which is showing actually the process of pulse amplitude modulation. Now this is the analog signal which is to be transmitted, and this is the modulated signal. इस केस में जो कैरियर सिग्नल होगा that will be pulse train of constant amplitude and constant timing, but modulation के बाद the amplitude of the pulse will keep on varying according to the value of modulating signal. Now here at this particular point the amplitude of modulating signal is less, so the modulated pulse also has less amplitude. At this particular point of time the value of modulating signal amplitude is maximum, so the pulse also has maximum amplitude. जहाँ पे भी modulating signal का amplitude ज़्यादा होगा वहाँ पे pulse का amplitude increase होगा. जहाँ पे modulating signal का amplitude कम होगा वहाँ पे pulse का amplitude भी कम होगा. Now this is a modulated signal. जो carrier pulse train होगी that will be of constant amplitude. सब pulses initially इन सब pulses का amplitude जो है एक particular value पे fixed होगा. After modulation that fixed amplitude will change according to this modulating signal. जहाँ पे भी modulating signal की वैल्यू ज़्यादा हुई वहाँ पे उस पल्स का एम्पलीट्यूड हाई हो गया. जहाँ पे भी modulating signal की वैल्यू कम हुई उस पल्स का एम्पलीट्यूड कम हो गया. So the end result is this pulse amplitude modulated signal. So the amplitude of different pulses has been modulated or has been varied according to the information bearing signal or modulating signal. Now this is a circuit that shows pulse amplitude generation. Basically here we are applying the analog input. ये वो सिग्नल है जो बेसिकली हमें ट्रांसमिट करना है, इंफॉर्मेशन बियरिंग सिग्नल, एंड इट इज़ इन एनालॉग फॉर्म. वी आर अप्लाइंग दिस इंफॉर्मेशन बियरिंग सिग्नल to the non-inverting terminal of an operational amplifier. So the amplified version of this analog signal will be available at the output. Now here we are using a switch. ये स्विच हम कंट्रोल कर रहे हैं बाय यूजिंग द कैरियर पल्स, दैट इज पल्स ट्रेन. सो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जब पल्स का एम्पलीट्यूड हाईएस्ट पॉइंट पे है द स्विच इज ओपन. दैट इज जब स्विच ओपन रहेगा द सिग्नल विल बी कपल्ड टू द ऑपरेशनल एम्पलीफायर 2. At this second point
when the amplitude of the pulse is at its minimum, the switch will be closed. So this point will be connected to ground, and the modulating signal from the output of operational amplifier 1 will not be able to reach the operational amplifier 2. So ये switch जो है ये open या close इस carrier pulse train के according हो रहा है. So ultimately the resultant we are getting is multiplication of these two signals. तो जहाँ पे कैरियर पल्स की वैल्यू 0 है, हमें वहाँ पे आउटपुट पे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी. जहाँ पे कैरियर पल्स की वैल्यू 1 है, these pulse and the modulating signal will be multiplied to each other, and the output we will have the natural sampled pulse amplitude modulated signal. Actually, pulse amplitude modulation is a step when we go towards डिजिटल कन्वर्जन, फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन. यहाँ पे हम सैम्पलिंग परफॉर्म कर रहे हैं इस एनालॉग सिग्नल की, क्योंकि आउटपुट पे जो हमें सिग्नल मिल रहा है दैट इज द सैंपल्स ऑफ दिस इंफॉर्मेशन बियरिंग सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. नाउ क्योंकि ये सैंपल सिग्नल की नेचुरल शेप को फॉलो कर रहे हैं, दैट इज वाई दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज कॉल्ड नेचुरल सैम्पलिंग. The other type of sampling is flat top sampling, where the samples will have their upper portion, that is upper edge, that will be flat and not following the shape of this information bearing signal. So that will be called flat top sampled signal, and this is a natural sampled signal because जो pulse का upper portion है उसकी shape depend कर रही है modulating signal की शेप पर, वो फॉलो कर रही है एग्जैक्टली मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की शेप को. दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज कॉल्ड नेचुरल सैम्पलिंग. सो दिस इज नेचुरल सैम्पल्ड पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल. द अदर टाइप इज फ्लैट टॉप सैम्पल्ड सिग्नल. सो here we can see that the samples are having flat tops. The top of the pulse is not following the shape of इंफॉर्मेशन बियरिंग सिग्नल. और दोनों सर्किट्स में बेसिकली जो चेंज है दैट हैज़ बीन ब्रोट अबाउट बाय दिस होल्ड कैपेसिटर. बाकी वर्किंग जो है दोनों सर्किट्स की सेम है. वी कैन ऑल्सो सी दैट द सर्किट इज ऑलमोस्ट सेम, बट इन द सेकेंड केस वी आर यूजिंग अ कैपेसिटर. नाउ ये कैपेसिटर चार्ज को होल्ड करके रखेगा कुछ देर के लिए, एंड व्हेन विल इट hold the charge, that will depend upon the presence of the carrier pulse as well as the modulating signal. तो जब ये switch open होगा, that is not connected to the ground, the capacitor will be charged to modulating signal, maximum modulating signal amplitude at that point of time, and this will keep on holding this charge for some particular amount of time till the next pulse arrives. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास फ्लैट टॉप सैम्पल्ड सिग्नल्स हैं, जहाँ पे जो पल्स का टॉप है दैट इज नॉट फॉलोइंग द शेप ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, बट ओवरऑल दीज samples are following this modulating signal shape. So this is a flat top sampled signal. The advantage of this flat top sampling is that कि अगर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन कोई नॉइस सुपर इम्पोज हो जाती है फ्लैट टॉप सैंपल्स के ऊपर, देन दैट नॉइस कैन ईजिली बी रिमूव्ड. बट इस केस में बिकॉज द टॉप इज ऑल्सो फॉलोइंग द shape of modulating signal, so we cannot distinguish whether this shape has been brought about by the noise or the modulating signal itself. तो ऐसे केस में हमारे लिए नॉइस रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब रिसीवर साइड पे सिग्नल पहुंचेगा तो ये बताना बहुत मुश्किल होगा कि जो इस पल्स की शेप है वो एक्चुअली इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की वजह से है या उसमें कोई नॉइस सुपर इम्पोज हो गई है, उस वजह से पल्स की ये शेप हो गई है. सो फ्लैट टॉप सैंपल्स बिकॉज दे आर हैविंग अ फ्लैट टॉप, तो उसके ऊपर अगर कोई नॉइस सुपर इम्पोज भी हो जाए ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, तो एट द रिसीवर साइड it may be easily told because the top of this pulse is not flat, so the change has been brought about by the noise and that can be removed.
नाउ दिस वाज ऑल अबाउट पैम मॉड्यूलेशन, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. एक बार जब हमारा सिग्नल रिसीवर साइड पे पहुंचेगा, देन वी हैव टू डीमॉड्यूलेट it to bring it back to the original shape. So the demodulator circuit consists of these two blocks, holding circuit and low pass filter. Now the holding circuit is again consisting of capacitor which can hold the charge for some particular instant of time. Depending upon how many capacitors we are using, we can term it as zero order holding circuit, first order, second order, third order and so on. तो जब एक बार हमारी पल्सेस रिसीवर साइड पे पहुंचेंगी, देन यूजिंग अ होल्डिंग सर्किट दैट इज होल्डिंग कैपेसिटर वी कैन डीमॉड्यूलेट द पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, एंड यूजिंग अ लो पास फिल्टर वी कैन रिमूव द अनडिजायर्ड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, एंड एट द आउटपुट वी विल अगेन रिकवर द ओरिजिनल सिग्नल दैट इज द कंटिन्यूस टाइम सिग्नल. जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल हमने ओरिजिनली ट्रांसमिट किया था रिसीवर साइड से, उसको पहले हमने सैंपल्स में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट किया है. उन सैंपल्स से यहाँ पे हमें दोबारा से रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल जो है ओरिजिनल सिग्नल रिकवर हो जाएगा. नाउ देयर आर सम ड्रॉबैक्स एसोसिएटेड विथ पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. फर्स्ट एंड मेजर ड्रॉबैक इज कि जो पावर और बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट हैं, दोज आर वेरी हाई इन पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एज कंपेयर टू अदर टाइप्स दैट इज पल्स टाइम मॉड्यूलेशन. दूसरा, बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज कंटेन्ड इन एम्पलीट्यूड वेरिएशन, सो इट इज ससेप्टेबल टू नॉइस इंटरफेरेंस. तो क्योंकि हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो एम्पलीट्यूड वेरिएशंस में कंटेन्ड है, तो ड्यूरिंग ट्रांसमिशन अगर एम्पलीट्यूड वेरिएशंस किसी नॉइस की वजह से हैं, तो एट द रिसीवर साइड it will not be possible to tell whether the change has been brought about by noise or the original modulating signal. So जो pulse amplitude modulated signal है वो ज़्यादा susceptible है noise to noise as compared to pulse time modulated signal that is PPM and PWM. Now we come to the pulse time modulation. Again, as already told that there are two types, pulse width modulation and pulse position modulation. In pulse width modulation, the overall width of the pulse is changing according to instantaneous value of modulating signal, and in pulse position modulation, the starting position of the carrier pulse is changing according to the instantaneous value of modulating signal. Now how to generate a PWM signal? This is the circuit to generate pulse width modulated signal. Basically we are using an operational amplifier. To the non-inverting terminal we are applying the modulating signal. Operational amplifier के non-inverting terminal पे हम information bearing signal या modulating signal apply करेंगे. This op amp is actually working as comparator. इसका output तभी हाई होगा जब the input at non-inverting terminal is higher as compared to the input at inverting terminal. Inverting terminal पे हमने एक sawtooth generator लगाया है. So this op amp is basically comparing the modulating signal to this sawtooth signal. तो जब भी इस op amp का output high होगा, it will give us a pulse width modulated signal. और अगर इस op amp के आउटपुट से हम एक मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को ट्रिगर कराएं, it will generate a pulse position modulated signal. Here is the diagram which actually shows the generation of PWM and PPM signal. Now हमने जो कंपैरेटर था उसके इनपुट पे दो सिग्नल्स दिए थे. फर्स्ट वन इज a ramp signal generated by a ramp generator which has been applied to the inverting terminal. Inverting terminal पे जो हमने ramp signal लगाया है, that is shown in this diagram. Second is the modulating signal. Modulating signal actually जो हमें signal transmit करना है, जिसको use करके हम modulation perform करेंगे. Now up to this point of time the modulating signal is high as compared to sawtooth signal. As we can see, यहाँ पे हमने sawtooth signal अप्लाई किया है, यहाँ पे modulating signal अप्लाई किया है. तो जब तक modulating signal हाई रहेगा, जो हमारा
कंपेरेटर है उसका आउटपुट हाई रहेगा। जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल सॉटूथ सिग्नल से एम्पलीट्यूड में कम हो जाएगा, द आउटपुट विल बी लो। सेम इज हैपनिंग हेयर। जब तक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की वैल्यू रैंप सिग्नल से ज़्यादा रही तो हमें आउटपुट पे एक पल्स मिल रही है। इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे रैंप सिग्नल की वैल्यू जो है वो हायर साइड पे चली गई एज कंपेयर टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट जो है दैट इज 0। सो वी आर गेटिंग द आउटपुट। नाउ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक रैंप सिग्नल की वैल्यू जो है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से ज़्यादा है। सो दैट इज वाई वी आर नॉट गेटिंग एनी आउटपुट। अगेन एट दिस पर्टिकुलर टाइम, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की वैल्यू जो है रैंप सिग्नल से ज़्यादा होगी, बिकॉज रैंप सिग्नल इज गोइंग ऑन लोअर साइड। तो ये होते ही हमें फिर से आउटपुट जो है वो हाई मिल गया। आउटपुट हाई कब तक रहा? जब तक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की वैल्यू रैंप सिग्नल से ज़्यादा रही। जैसे ही रैंप सिग्नल की वैल्यू शूट अप हुई मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से, अगेन द आउटपुट गोज बैक टू लो। तो अगेन दिस प्रोसेस इज रिपीटिंग। हम नाउ वी कैन सी दैट जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की वैल्यू लो थी, हमें कम विड्थ का मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिला है। जहाँ पे उसकी वैल्यू हाई होती जा रही है, द विड्थ ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज चेंजिंग टू द हायर साइड। विड्थ जो है ज़्यादा होती जा रही है। सो दिस इज कॉल्ड पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड सिग्नल। सो यहाँ पे हमें पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिल गया। नेक्स्ट वी कम टू पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। नाउ अगर हम रेफरेंस पॉइंट लेके चलें, इन जो हमारा रैंप सिग्नल है उसके स्टार्टिंग पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट लेके चलें, तो हमें एक ऐसा सिग्नल चाहिए जिसकी पोजीशन जो है इस रेफरेंस पॉइंट से चेंज होती जाए अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। एक मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो है वो कांस्टेंट विड्थ और कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का पल्स मॉड्यूलेट करेगा, बट उसको हमें एक ट्रिगर अप्लाई करना पड़ेगा, एंड दैट ट्रिगर इज बीइंग अप्लाइड बाय द ट्रेलिंग एज ऑफ दिस पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड सिग्नल। इसका जो ट्रेलिंग एज है वो एक मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को ट्रिगर कर रहा है। तो यहाँ पे हमें एक कांस्टेंट विड्थ और एम्पलीट्यूड की पल्स मिल रही है। तो जहाँ पे पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड सिग्नल का विड्थ जो है वो ज़्यादा होगी तो ट्रेलिंग एज ज़्यादा लेट आएगा। ट्रेलिंग एज ज़्यादा लेट आएगा तो एक जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है उससे जो हमारी पल्स है उसकी पोजीशन और दूर जाती जाएगी। सो वी आर गेटिंग अ सिग्नल हुज पोजीशन इज डिपेंडेंट अपॉन द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ दिस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की वैल्यू ज़्यादा है तो उसकी रेफरेंस पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो गई। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की वैल्यू कम है तो रेफरेंस पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट कम होगी। सो दिस इज अ पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटेड सिग्नल। Now difference between these two signals is that both the edges, that is the leading edge and the trailing edge of the pulse position modulated signal has been modulated, but pulse width modulation के केस में हमने सिर्फ पल्स के एक एज को मॉड्यूलेट किया है, यानी कि इंफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ इस ट्रेलिंग एज में कंटेंड है। बट जो पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसमें लीडिंग एज एज वेल एज ट्रेलिंग एज बोथ आर कंटेनिंग द इंफॉर्मेशन। Now to generate the PPM signal we have used PWM pulse width modulated signal as a trigger input to a monostable multivibrator.